بالکل یہی سب سے اہم بات ہے کہ ویور کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ بات سمجھ آتی ہے، نہ کوئی کنکلوژن نکلتا ہے. جیسے آپ نے ہسٹری کی بات کی، ماضی کی بات کی صدیق صاحب، تو وہی باتیں بار بار ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو لگتا ہے کہ جیسے ایک، معاف کیجیے گا ریلی سوری، لیکن لگتا ہے جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر چل پڑا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ اب اگر ایک پارٹی بات کرے گی تو وہ این آر او کی طرف جائے گی، دوسری پارٹی بات کرے گی تو وہ معافی نامے کی بات کرے گی. وہی باتیں بار بار کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کرنٹ افیئرس کی بات جو موضوع سامنے آئے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اپوزیشن کا کردار سامنے آ جاتا ہے، اس میں پھر عموماً مثلا اس وقت اگر سٹنگ گورنمنٹس ہیں ان کے پاس اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض ناکامیوں کا، تو وہاں پھر جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پھر دائیں بائیں کرنے کی تو اس کوشش میں کرتے اپوزیشن ان ہیں. سے کہے نہیں اس کو چھوڑیں، آپ ایشو کا جواب دیں. میں اس پہ آ رہا ہوں نا، یعنی میں اس پہ آ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو جھگڑا ہے نا وہ دائیں بائیں ٹالنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اب اس ایشو کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تو کسی طرح سے میں ملبہ دوسری طرف ڈال دوں. یہ ایک تو بات یہ مجاہد صاحب کہ شاید کوالٹی کے ساتھ چیز خراب ہوئی، مگر دوبارہ ہم کوالٹی کی طرف جائیں گے کوانٹٹی کے ساتھ. فریا دیکھیں مجھے آج ایک موقع مل رہا ہے اور آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے موقع مل رہا ہے. میں کترینہ بہت اسپیسیفک کہتا ہوں بات. آپ جو کہتی ہیں نا اینکر ذمہ دار ہے یا سیاستداں، میں میرے خیال میں کیونکہ ہمارے اخلاقیات میں ہے چینلوں کی کہ ہم نام نہیں لیتے چینل کا یا پروگرام کا، لیکن ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک خاتون دوسرے خاتون کے بارے میں انتہائی لائف ہوتا ہے، زبان استعمال کرتی ہیں وہ شاید میں لینا بھی نہیں چاہوں. ہمارے پروگراموں میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لائف کسی شو میں چلے جاتے تھے تو ہم لوگ بعد میں جب ریپیٹ میں کم از کم اس کو کاٹ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ لائف میں کسی کا منہ نہیں پکڑ سکتے. ہم عمومی طور پر اس کو جب 2 گھنٹے بعد جب ریپیٹ ہوتا ہے کاٹ دیا. مجھے یہ علم ہوا کہ وہ جو ایک خاتون نے دوسرے خاتون کے بارے میں جو کچھ کہا، ان خاتون نے درخواست کی ان چینل کے اونر سے، ان کے اینکر سے کہ پلیز یہ جو کیونکہ بہت ہی لفظ جو ہے نازیبا ہے اس کی نہ کریں. اس کا پرومو بنایا گیا، اس کو دوبارہ چلایا گیا. تو یہ جو فریحہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کوئی یہ اس کی مورلٹی اخلاقیات نہیں ہے؟ مثلا کوئی فون اٹھائے میرے اور آپ کے بارے میں کوئی ذاتی بات کہہ دے تو ہم اس کو پرومو بنا کے بار بار چلائیں گے؟ یعنی آپ ہمیں اپنے کو بھی تو رکھیں نا، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے بارے میں ڈیفیمیشن کے لاز ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو میں ایسے بے شمار باتیں میں ایسے بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں فریحہ کہ یہ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک کو دوسرے نے جیسے باقاعدہ گالی دی اس کو دوبارہ وہ سناتے رہے. مثلا مسلم لیگ نون کے رہنما ایک ہمارے سینئر صحافی کے بارے میں وہ لفظ استعمال کر رہے تھے، وہ ریپیٹ ہوتا رہا. تو کہنے مقصد یہ اس میں دونوں ذمہ دار ہیں اور ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. میرے پروگرام میں جو کچھ کہا جائے گا میں اس کی ذمہ داری لوں گا، یا میں اس میں کروں. کٹرینہ پہ آخری ذمہ داری کہ ہم لوگوں کے اوپر آتی ہے، جو بھی پروگرام میں ہوگا ہمیں اس کی فل رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہماری بات ہی نہیں سنی گئی، وہ لوگ خود ہی بولنا شروع ہو گئے. ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آخر انہیں کچھ کہہ دیا؟ نہیں، یہ میں بالکل نہیں مانتی. اگر آپ کے میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے کہ 2 لیڈرز میری شو میں لڑنے لگے اور بہت ہی تلخ قسم کی باتیں اور ذاتی باتیں جب شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ اس قسم کی ناشائستہ زبان نہ میں سننا چاہتی ہوں، نہ میں اپنے ویورز کو سنانا چاہتی ہوں. یہاں پہ میں ایک لیتی ہوں بریک، اور بریک جو میری شیڈیول پہ نہیں تھی، اور میں نے پروگرام کو وہیں لائیو کاٹا، بریک لی. بریک میں نے دونوں کو سنا دی اور کہا کہ آپ لوگ اس قسم کی زبان یوز کریں گے تو میں پروگرام ختم کر دوں. ہم جتنا بھی ترقی کر لیں ہمیں کچھ چیزوں میں ابھی بھی پہلے کی طرح کنزرویٹو ہی رہنا پڑتا ہے. وقفے کے بعد بات کریں گے. ہم نے ایک بلاگ کھول دیا ہے نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس کے اوپر، جس کے اوپر ہم آپ سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹاک شوز میں کیا روز کے لڑائی جھگڑے آپ کو پسند ہیں یا آپ ان سے اکتا چکے ہیں، اور ٹاک شوز کے اوپر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈو رائٹ ٹو اس. آپ کی آرا بھی ہم شامل کریں گے، مگر وقفہ لیتے ہیں. اس کے بعد شیخ رشید صاحب اور کشمارہ طارق بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.
पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर रोज एक नई खबर होती है और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी आम पब्लिक को बाकी ममालिक की निस्बत ज्यादा ही देखा गया है। टॉक शोज का एक खास मिजाज है, एक खास मूड है और पाकिस्तान के मुआशरे के मुताबिक पाकिस्तान के टॉक शोज एक बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मगर टॉक शोज के मेयार के बारे में अभी पिछले कुछ दिनों से बार बार सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी पर हम आज बात करें। कशमाला तारिक साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है, आप ही हमें ज्वाइन करिए। वेरी वार्म वेलकम टू यू कशमाला। बात हम ये कर रहे हैं कि क्या पब्लिक देखना चाहती है और क्या पब्लिक पसंद करती है। बार बार आप ही जब पार्टीज में जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, तो ये बात जरूर की जाती होगी कि वहां पे लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में कसूर किसका होता है, पॉलिटिशियंस का या एंकर्स का? देखिए फरिया, लड़ाइयों का तो हम अब एक सीरीज देखते आते हैं और हर रोज का एक मामूल बन गया है, मगर ये कोई अच्छा मैसेज पब्लिक को नहीं भेजता। और जब हम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी नहीं करते। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि जो आप लोगों के ने या एक खुद ही सेल्फ क्रिएटेड ज़ाब्ता बना लिया है कि जी रेटिंग हमारे प्रोग्राम की बड़ी अच्छी आ गई जिसमें लड़ाई हो गई, तो हम क्या मैसेज भेज रहे हैं कि हम इस किस्म की कौम है कि जो मुहज्जब भी नहीं है, या जिन लीडर्स को लोग पीपल लुक अप टू, जिनको हम आइकॉन्स कहते हैं, कि वो इतने बदतमीज हैं कि आपस में वो इस किस्म की गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं या तू तड़क करके बात करते हैं। तो उसमें आई थिंक फरिया एंकर पे भी डिपेंड करता है, उस शो के प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करता है और आपके चैनल की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। ये तमाम आप उसको बड़ी आसानी से कट डाउन भी कर सकते हैं। सर्टनली सियासतदान या जो भी बैठा हुआ है आपके शो पे मेहमान है, उस पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने तमीज के दायरे से बाहर ना निकले। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के पास भी एक इख्तियार है कि आप उसको कहाँ कट डाउन कर सकते हैं या आप कहाँ पे खुद लोगों को इंस्टिगेट करें लड़ाई कराने के लिए। और मेरा ख्याल में कि काफी हद तक आप लोगों के ऊपर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी फरिया, मैं कशमाला की बात में जरा सा एक इजाफा कर दूं। जो कशमाला ने बात की फरिया बिल्कुल जायज और दुरुस्त इसलिए है कि सहाफत और सियासत दो ऐसी चीजें होती है जिसमें सीनियरिटी भी होती थी, अदब आदाब भी होते थे और बड़ों और छोटों का ख्याल आता था, जबान का भी, बयान का भी। अब आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुझे अगर पॉलिसी मालूम करनी है, फॉरेन पॉलिसी या दाखिला पॉलिसी, तो आप मैं सीनियर रहनुमा को बुलाऊंगा, रजा रब्बानी को बुलाऊंगा, मैं खुर्शीद शाह को बुलाऊंगा, मैं इस तरह के कई नाम लेना चाहता हूं, नवीद कमर को बुलाना चाहूंगा। अब होता यह है कि वो लोग तो आ नहीं रहे और हमने आजकल एक ऐसे साहब को पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से हर मौजू पर, चाहे दाखिला पॉलिसी हो चाहे खारजा पॉलिसी हो, कि जो अभी उनके सदर का या उनकी पार्टी के सरबरा का नाम नहीं लिया जाता, उनकी आस्तीनें चढ़ जाती हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है, जबान उनकी जो है वो झाग उगल रही होती है। वो डेजिग्नेटेड है ना सदर साहब, उनके सबब हमें रेटिंग मिलती है। सदर साहब ने डेजिग्नेट किया हुआ है उससे। सदर साहब के मुशीर की बात नहीं, मैं कह रहा हूं, हाँ मैंने रेटिंग मिलती है, दुरुस्त करते हैं, शायद मैं भी ये करूं, उन्हें बुलाना चाहूं। लेकिन ये जो बात कशमाला कह रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमें पील पार्टी की पॉलिसी तो नहीं पता चलती ना। ठीक, पार्टी की पॉलिसी, उसमें एक और बात भी है। चौधरी निसार साहब तो आते नहीं है, जैसे अब आजकल एक साहब ऐसे आते हैं जिनका कोई पीआईए के पहले मुलाजिम थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, चौधरी निसार साहब। अगर मुझे पॉलिसी मालूम करनी है मैं उनको बुलाऊंगा। अब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी हमारे सिद्दीकुल फारूक साहब बड़े अच्छी तर्जुमानी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहनुमा मुस्लिम लीग नून के नाम पर आते हैं। मैं तो देखिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ फरिया, मैं जिस तरह नहीं कर रहा, नाम लेने से मैं जरा गुरेज कर रहा हूँ। कहने का मकसद यह है कि अगर हम मुख्तलिफ इशूज पर पार्टियों की पॉलिसी, उनका मौक़िफ़ मालूम करना चाहते हैं तो उनके ऐसे सिंसियर, कमिटेड, सीरियस लीडरशिप को बुलाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कटरीना के पास ही मैंने जाना है, क्योंकि कटरीना ने कहा था हम बैकग्राउंड में जाके इसको देखेंगे। मगर कशमाला साहबा, ये आपसे रेलेवेंट सवाल है क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं अपनी पार्टी की। मुझे बताएं, ये पार्टीज का काम है कि किसको डेजिग्नेट करें, वो कहाँ जाके बात करें। और पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल है एक पार्टी की जो इस मामले में बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, उनको पता है किस बंदे को कहाँ भेजना है। उनकी पॉलिटिकल उनसे बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं और करते भी हैं, मगर इस बात पे सब मानते हैं, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि जब टॉक शोज में लोग जाने हैं तो वो अपना मौक़िफ़ सही तरीके से समझाते भी हैं, सुनाते भी हैं और गेस्ट अवेलेबल भी करते हैं। बाकी पार्टीज ऐसा क्यों नहीं कर सकती? देखिए फरिया, मैं आई टेंड टू डिसएग्री विद यू। हर पार्टी के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं और मेरा ख्याल में तमाम पार्टीज के अंदर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने का हर किसी के पास लोग होते हैं। लेकिन हर कोई तो नहीं जाके मौक़िफ़ दे सकता ना। आप किसी को ट्रेन करते हैं, किसी को समझाते हैं और उनको डेजिग्नेट करते हैं, आप जाके बात करें। फरिया मेरी बात सुने, आपके पास जो एंकर्स हैं जितने आए हैं, क्या वो सब ट्रेंड एंकर्स हैं? तो इसी तरह पॉलिटिशियंस भी अपने, मैं आपसे यही अलग बात है।
एंकर होना अलग बात तो मैं है, यही कह रही हूँ ना पार्टी का कि मौका देखिए देना कोई एक बिल्कुल स्कूल अलग से तो बात नहीं करके कुछ भी आया हुआ। अब मेरी बात सुने फरिया, कोई भी किसी स्कूल से पढ़कर नहीं आया, कोई सियासत के स्कूल से या कोई एंकरशिप जो है किसी स्कूल से कोई आप लोग सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए होते, ऑन जॉब एक्सपीरियंस आता है। इसी तरह जो पॉलिटिशियंस आकर बैठते हैं बात करते हैं, मैं सिर्फ ये कि हद ये होनी चाहिए कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, पार्टी की पॉलिसी आती है नहीं आती, अगर नहीं आती तो वो आप पार्टी का नुकसान करें, लेकिन तमीज के दायरे से बाहर ना लेकिन निकले। नहीं, फरिया तमीज के दायरे में भी आप बात भी ऐसे करें जिसमें कोई सेंस हो, जिसमें कोई सब्सटेंस हो। बिलो द बेल्ट जाना इज नॉट राइट। मैं दूसरी यहाँ बात चीज करना ये चाहता हूँ। कि ठीक, आप below लोगों के जो एंकर्स हैं, देखें जो आप लोगों की ये जो चैनल्स की रेटिंग का चक्कर शुरू किया हुआ है, खुदारा वो तो हमें भी समझाएं कि क्या है। अपनी मर्जी के 3000 घरों में आपने कराची में लगाया हुआ है वो डब्बा, और आप रेटिंग उस पर डिटरमिन सिर्फ करते हैं, कराची में लगाए नहीं है। लगाए फिर पूरे पाकिस्तान में। आई वुड से कि फिर वो एक पार्टी मॉनिटर कर रही है, हम तो यही सुनते हैं, और एक पार्टी के कहने के ऊपर रेटिंग आती है। नहीं, ये तो अब ये बहुत I'm बड़ा sorry to इल्जाम लग say, गया। सिद्दीक फारूक साहब, आप कुछ कहना नहीं, चाह रहे हैं? आप- पार्टी बात ये इल्जाम नहीं है। उसी रेटिंग के चक्कर में आप सारे बिल्कुल एंकर्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, और फिर आप कहते हैं यार अगर लड़ाई नहीं हुई तो हमारी रेटिंग अच्छी नहीं ये है। बात मैं क्या किस ये वाला- आप लोग किस वाला ऑफ द की- रिकॉर्ड पीछे मैं बात इस कर रहे बात होते की हैं। तस्दीक करते हुए मैं ये आगे बढ़ूंगा कि एक तो खुद एहतसाबी हम में भी होनी चाहिए और आप में भी, और आप है, मीन्स मीडिया, बिल्कुल, तभी ये ठीक है शो जी? कर रहे हैं। सही। तब जाके ये मामलात दुरुस्त होंगे। तो मैंने जो कहा था ना कि मैं मुतमईन हूं कि इम्प्रूवमेंट आती चली जा रही है, लेकिन ये बात जो बरेलवी साहब ने की है वो भी कि आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आप इंफॉर्मेशन तक आपकी अप्रोच जो है पहुंच ज़्यादा होती है, आपने किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाना है। मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मीडिया की जिम्मेदारी तो बड़ी है। उसके शेख लिए रशीद साहब हमें लेकिन ज्वाइन कर रहे एक- हैं, एक- एक मिनट उनको अच्छा, मैं करें। वेलकम करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आने की, और ईद मुबारक आपको भी बहुत ज्यादा। शेख साहब, आप तो आपको भी बहुत इंफॉर्मेशन सारी। मिनिस्टर रह चुके हैं, और आपको कहा जाता है कि मीडिया के डार्लिंग पर्सनालिटीज में से एक आपका नाम सबसे ऊपर है उनमें, लेकिन क्या ये पार्टीज का काम नहीं है कि वो अपने लोगों को ट्रेन करें, उनको समझाएं कि उन्हें क्या बात करनी है? क्योंकि एंकर को तो उस वक्त कई दफा ऐसे होता है कि जो भी मिलेगा गेस्ट, नहीं मिल रहा कोई और, कोशिश होगी बेस्ट गेस्ट मिले, जैसे मुजाहिद साहब कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो वो देखिए, किसी को अब बुला मैं- सकते हैं। अब मैं देख रहा हूं जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, अभी मैंने 2-3 फंक्शनों में देखा, मशाहिदुल्लाह साहब को भी देखा, दूसरे अहबाब को भी देखा, उनके पास ब्लैकबेरी फोन होते हैं, उन पे जवाब वगैरह आते हैं, इनके पीछे पूरा मेरा ख्याल है एक थिंक टैंक होता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जिनको कंप्यूटर नहीं आता, वो तो बाज़ का गलती हो जाती है, लेकिन अब इस मुल्क की चॉइस ये है कि लोग ज़हनी अय्याशी और फनी खराबी को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम। अब मौला जट जो है, मैंने इसको बंद करना चाहा। मौला जट जब फिल्म चली फरिया, तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा इसको बंद करो। मैं मिनिस्टर कल्चर भी मेरे पास थी उस वक्त, इंफॉर्मेशन के अंदर कल्चर, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और यूथ भी होती थी। राइट, सिनेमे वालों ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा सर जी सिर्फ मौला जाटी है जो फिल्म ना हो तो खर्चा पूरा करती है। राइट, सुल्तान राय के मरने के बाद, ईद के दिन मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, अल्लाह मेरा गुनाह माफ करे, सुल्तान राय के कत्ल होने के बाद किसी शख्स ने मुस्तफा कुरैशी को फिल्म में कास्ट नहीं किया, और 52-53 फिल्में तबाह और बर्बाद हो गई जिन लोगों की जहां जहां बनी हुई थी।